News Services Division of All India Radio presents Money Matters. देश और लोगों के वित्त और अर्थव्यवस्था से जुड़ा कार्यक्रम About savings, investments, borrowings and taxations. हिंदी और इंग्लिश में सीधा प्रसारण On our digital platforms. सुनना ना भूलें हर रोज शाम 4:05 से 4:30 तक. Money Matters. Hello, good afternoon and welcome to Money Matters, our daily show on all things to do with personal finance. You're listening to Money Matters on the official All India Radio News YouTube channel. This is an interactive show where you can also participate. You can do that simply by typing your comments in the live chat section. Or you can send us an email on moneymatters.air@gmail.com. We announce the topic of the show one day in advance so that you can send in your questions in advance. So as announced earlier, our topic for today is basics of derivatives. I am V. Ravi Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद रवि। नमस्कार श्रोताओं, मनी मैटर्स में आपका स्वागत है। देश और लोगों के वित्त और अर्थव्यवस्था से जुड़े इस कार्यक्रम में हम रोज एक निर्धारित विषय पर अपनी चर्चा केंद्रित करते हैं। आज का विषय है डेरिवेटिव्स से जुड़े बुनियादी तथ्य। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम आपके प्रश्न भी शामिल करते हैं। प्रश्न भेजने के लिए हमारा ईमेल आईडी है moneymatters.air@gmail.com। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ चर्चा करने के लिए आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ जयंतो दास। जयंतो नमस्कार, मनी मैटर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। Jayanta, we have spoken about futures and options, index options and stock options a couple of days back, and there have been other programs on Money Matters as well on various aspects of futures, options and derivative markets. But here we're talking about basics of derivatives. So if you're talking about basics of derivatives, many years ago when I first encountered the concept, a professor once explained it to me by saying that what do you do if you want mangoes in winter? So he said, you pickle it or you make a jam out of it. Derivatives is the same concept. Exactly. So if you go back to the basics of derivatives, we use the word derivatives, so it derives value from an underlying asset. Exactly. So explain to us what are these underlying assets and why is derivative required? What was the need for a derivative? Well, if you need to actually know what's the need for a derivative, there's a little bit of history to it, which I guess we should share with our listeners. See, derivative trading is not something new as a concept in India, because although it was officially introduced by SEBI in 2000, since when the Indian market started derivative trading, but actually India is considered to be the pioneers of derivative trading. Because way back in 1875, when the cotton market was created, derivatives trading actually started from that time. And by the year 1900, India was one of the largest in futures trading in the world. So it has got a considerable history, specifically given to our forefathers, focus on how to manage the cotton prices, and to, absolve themselves from, the fluctuations of cotton prices. They started the derivative trading concept. Then thereon, post-independence in 1950s, this trading was completely suspended because basically government of that day particularly thought became socialist and that these would be affecting prices on the market, and which when the derivatives started being accepted, derivative as a mode in 2000, at that time also there was a lot of consideration and political views which actually was fearing that maybe this is responsible for going on as a important factor that will create fluctuations in the prices of commodities. And till now, a lot of people, hearsay if you go and talk to them, and if you say, some products have increased in prices and things like that, they would, off the course, sometimes will refer to, the state of derivative market being responsible, which I think is completely unlinked to a great extent. It's a very mature form of trading. Now, coming back to your question, yes, it derives its value from underlying assets, and assets can be anything. Specifically in India, it can be, your indices, stock indices. It can be commodities. We do a lot of derivative trading in products like gur, chana, dal, and things like that. It can be, an underlying asset like interest rate. It can be an underlying asset like currency, and it can be an underlying asset like stocks per se. Now, also bringing back an example which you have mentioned, so if you have to bring in a small quotation in terms of how, a basic derivative, because since we're discussing basics and we're not going to go to the finer nuances. So if someone wants to, buy gold in October and say
60 days down the line, he needs that gold. He doesn't need the gold right now in October. He has announced the marriage of, let's say, his son or daughter Exactly. 30 days later or 60 days 60 later. days later. And he's wondering whether the prices will go to 5,000 Exactly. or whatever. Exactly. So what does he do with derivatives? So what he does is, say for example, the price of gold is 30,000 rupees per 10 grams. So he books and, he buys a contract which, commits to him a price of 30,000 rupees for the month of December. Now to buy that contract, he has to pay a small price, which is a little bit of commission, which is called. Now with that commission, he buys that contract. On the other hand, there is a person who is a seller. Now this seller believes that the price will not be 30,000. It can be 30,200 or it can be 29,800. So based on that, he enters into a contract and he commits that, okay, if you are agreeing to pay me 30,000, I will buy it at whatever price I get and commit you a price to this. So these two people are engaged with a committed price. Now, on that particular day, when actually the derivative has to be, delivered, the product has to be delivered, it depends on the price of the product. If the price of the product is 30,200, the seller of the gold, he faces a loss. He picks up the price at 30,200 and gives at 30,000 to this particular person. Or if the price is at 29,800, which he initially speculated, by which he entered into the contract, he gains 200. So for both the parties, there is obviously, if someone loses, someone gains. But what actually happens is, there is, for the buyer especially over here, he knows this is the maximum amount of losses I'm going to face, and that's how he fixes up his price. So his loss will be, say for example, if he is bought in the contract at 30,000 and there was a commission of 20 rupees or 25 rupees or even 30 rupees to pay, his loss is 30 rupees and not somewhere, haphazard or somewhere fluctuating at say 30,100 or 30,000. So can we say derivatives is a way of insuring, or it's a kind of insurance that you buy? For example, you gave the example of somebody so typically, marrying what we call them, it's a hedging of your risks to a great extent. But also in addition, derivatives is also a great way of earning more money, which means कि इसमें risks भी काफी ज़्यादा फोकस हो जाता है साथ में. तो ये जरूर है कि डेरिवेटिव्स का शुरुआत ये शुरू हुआ था कि भाई हम कहीं ना कहीं अपना जो नुकसान है उसको हम कैप करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डेरिवेटिव्स एज एन इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग टूल टू अर्न इनकम इज ऑल्सो इक्वल रियलिटी इन टूडेज वर्ल्ड. सो जंतो, आप कह रहे थे कि ये बहुत मैच्योर फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग है, तो इसमें किस तरह की आपके पास स्किल सेट्स होनी चाहिए? आपने जो बताया उससे हम समझ पा रहे हैं कि फ्यूचर में क्या प्राइस मूवमेंट्स होंगी जिस भी आप अंडरलाइंग एसेट को ले रहे हैं, चाहे आप करेंसीज को ले रहे हैं, कमोडिटीज को ले रहे हैं, या स्टॉक्स को ले रहे हैं, या स्टॉक इंडेक्स को ले रहे हैं. सो एक तो आपको फ्यूचर प्राइस मूवमेंट को मेजर कर पाना या प्रिडिक्ट कर पाना जरूरी है, और कौन से ऐसे स्किल सेट्स हैं जो चाहिए ताकि आप इसको एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट बना पाए? बिल्कुल. देखिए, स्किल सेट्स के बारे में अगर आप बात किए तो बहुत अच्छा सवाल इसलिए मानता हूं क्योंकि अनलाइक स्टॉक्स जहां पे आपको चलिए मार्केट में थोड़ा बहुत जानकारी होते हैं या कंपनी का परफॉर्मेंस के ऊपर बेस करके, पुराना परफॉर्मेंस को बेस करके आज का तारीख में उस कंपनी का भाव आप लगा रहे हो और उम्मीद रखते हो कि भाई इस मार्केट में अगर तेजी रहेंगे तो ये कंपनी शायद अच्छा करते है, इसलिए आप निवेश करते हो, राइट. अच्छा, दूसरा चीज में ये भी हो सकता है कि आपको लगता है कि भाई अगर इस कंपनी में गिरावट आ सकता है तो लोग को इसमें पैसा नहीं लगाता. लेकिन डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग में आप दोनों तरफ कर सकते हो ये काम. इसमें अगर आपको लगता है कि आप इसमें ये कंपनी आगे जाने वाला है, आप एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आप कॉल ऑप्शन डाल सकते हो. अगर आपको लगता है इसमें गिरने वाला है तो आप एक पुट ऑप्शन खरीद के आप उसमें वो कर सकते हो. तो यानी कि इसमें गिरावट में भी आप पैसा कमा सकते हो और उछाल में अलग से पैसा बेशक कमा सकते हो. लेकिन अब सवाल यह है कि स्किल सेट्स का यहाँ पे बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रिक्वायरमेंट है. हालांकि हर निवेशकों को कुछ ना कुछ स्किल्स और कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन, सूचना, कोई भी चीज में अगर आप करने का कोशिश करो बहुत जरूरी होता है. लेकिन डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग में खास करके आपको जानकारी कम से कम 2 से 4 गुना ज्यादा होना चाहिए मार्केट के बारे में. और इसके अलावा हियरसे में मत जाइए. आपका पड़ोसी बोल रहे भाई गुड़ का रेट चढ़ने वाला है, तू इसका फ्यूचर उठा ले. इसमें एक्सपोजर काफी ज्यादा है, आपका इनकम काफी ज्यादा हो सकता है इसमें कंपेयर टू नॉर्मल स्टॉक्स. कम पूंजी लगा के ज्यादा रिटर्न आपको मिल सकता है. लेकिन जहां पे 100 किलो ऑफ गुड, एक तो वहां पे अगर डिलीवरी हो, अगर आप डिलीवरी बेस ना कर रहे, अगर आप फ्यूचर्स में ऑप्शंस कॉल या पुट ऑप्शंस खरीद रहे तो वहां पे कोई डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग नहीं है. लेकिन वहां पे नुकसान का जो प्रोपोर्शन है वो 5 गुना ज्यादा भी हो सकता है. यानी कि अगर आपको एग्जांपल अगर मैं दूं, सोचिए कोई स्टॉक वो खरीद रहा है जिसका आज का तारीख में प्रेजेंट मार्केट वैल्यू है 10 लाख
और वो चाह रहे हैं कि ये भाई 60 दिन बाद ये स्टॉक हो जाएगा 12 लाख, तो 2 लाख का बढ़ोतरी है, तो 2 लाख के हिसाब से वो 10% लगाएंगे, तो ओवरऑल 12 लाख का 10% हो गया 1,20,000। तो यहाँ पे डेरिवेटिव ट्रेडिंग में आप 1,20,000 रुपया लगा के, वो आपका पास स्टॉक है नहीं, आप ये कॉन्ट्रैक्ट खरीद सकते हैं। अब 2 महीने बाद अगर वो 12 लाख ना पहुंच के उसमें अगर नुकसान हो तो वो नुकसान आपको भरपाई करना पड़ेगा। वो नुकसान आप भरपाई कर दिए तो आपका कुल नुकसान कितना हुआ? 1,20,000, और जो नुकसान हुआ घाटा हुआ, एक तो ये हो गया आपका लॉसेस। अगर 12 लाख से बढ़ के वो 14 लाख हो जाता है, 2 लाख और हो जाता है, तो आपका फायदा क्या हुआ? 2 लाख हो गया। तो 1,20,000 आपने लगाया और आपका फायदा 2 लाख हो गया, यानी कि इतना कम पैसा लगा के आपका इतना ज्यादा रिटर्न रातों रात मिल गया। तो देखने में बहुत आकर्षित एक फैक्टर है, फिगर है, जहां पे लोग नहीं लगता, आपको लगता है भाई नॉर्मल स्टॉक में 1,20,000 लगा के आपको तो एक साल में भी उतना ना मिले, लेकिन यहाँ पे रातों रात 60 दिन का अंतर आपको मिल सकता है। लेकिन इस तरह का प्रोडक्ट्स में रिस्क बहुत ज्यादा होता है, और जैसे मैंने कहा कि हमेशा आपको स्क्वायर अप करना ही पड़ता है जब वो टाइम पीरियड बिल्कुल, क्योंकि आपसे स्टॉक्स में तो हम 5 साल 10 साल तक होल्ड कर सकते हैं, तो वो डे टू डे स्क्वायर ऑफिंग होता है, फिर समय बेसिस में होता है, डिलीवरी बेसिस में होता है। अब जैसे रवि ने कहा कि भाई आपने 100 किलो गुड़ खरीद के कहीं बैठा है, अगर वो डिलीवरी करना है तो आपको करना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें हैं बेशक, और हमारा श्रोताओं के लिए खास करके कमोडिटीज के लिए 2 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, कमोडिटीज एक्सचेंज का, जहां पे आप फॉरवर्ड ट्रेडिंग कर सकते हैं। एक है MCX और दूसरा है NCDX। और इसके अलावा आपका नॉर्मल जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में आप करेंसी का ट्रेडिंग या फ्यूचर स्टॉक ऑप्शंस का ट्रेडिंग या सेंसेक्स का जो ओवरऑल सेंसेक्स इंडिसेस का जिसको हम ट्रेडिंग का, तो वो आप बेशक कर सकते हैं। So you basically, we have established that derivatives derive their value from an underlying asset, which could be a commodity, like you mentioned cotton, where we started off from, or probably good. It could also be financial, like it could be an index option or it could be a specific stock. So there are 2 basic categories. Now, I mean, I'm trying to again relate it to the basics, to the common man. Every 2 years, 3 years, we have this kind of a zone where we say onion prices have gone very high, tur dal prices have gone very high, or tomato prices have gone very high. Is it possible for a consumer or a farmer to control this volatility by getting into an onion future, onion forward, or whatever equivalent? Yeah, see, now it's an important question. Technically, yes, it is. But unfortunately, they are not available right now. Yeah, our traders, our manufacturers are not completely linked, because there are 2 different classes of people. One is who are manufacturing this and selling it in the local market, and the others who are sitting in big cities and through their desktops or computer screens or even their cell phone screens are trading on this. So there are 2 different, sets of people who are operating, and obviously the information flow is not that evident, as a result of which we see these fluctuations happening. Having said that, I must also say the overall delivery system in India, I mean, while in a lot of mature markets the future prices actually give an indication of to what extent prices would be heading, in India still not that deep in terms of the information flow. So once again, it depends on what the MSP in the markets are, the status of the overall delivery, the product availability, as well as weather. We all know India is still completely dependent on monsoons for its agricultural produce to come in effectively well, depending on how good the monsoon is. And based on that, obviously, prices keep on fluctuating. The other part, Ravi, since you have brought in onion prices, and since onions have been in the news of late because of the prices shooting up to high levels, in India there is also a third set of people, and specifically these are the middlemen who keep on twisting the markets, and who actually have information on both sides. Exactly. So they actually twist and tweak the markets to their own benefit. Obviously, they are called hoarders, basically in the media, but they have got absolutely no link with trading, nor with any link with the manufacturers per se. So they take advantage of this difference, and then they keep on trying to twist the markets. And unfortunately, because of number 1, lack of information flow between these 3 sets of people, and number 2, an extreme urge of wrong profits. I mean, profits is something very healthy and nice, but if it goes to abnormal levels, it's considered to be wrongly unethical profits. Because of the extreme greed of unethical profits of these holders, we keep on seeing product prices, specifically in some of the products, being so volatile. I mean, sometimes you'll see potatoes, but not like onions, which almost every year comes in as a highly volatile price commodity. Jayantu, and also to some extent, I must say dal, because we are one of the largest consumers of pulses in India,
and heavily dependent on imports because our own production to that extent are not catering to our overall demand. So that's another area, specifically tur dal, which is highly fluctuating. And if you see the forwards market, that also is quite volatile related to tur dal. You're listening to this discussion on the basics of derivatives on Money Matters. मनी मैटर्स में आपका फिर स्वागत है। श्रोताओं, आपको बता दें कि कल हमारी चर्चा का विषय रहेगा करों की बचत के लिए कहां निवेश करें, और आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वह है डेरिवेटिव्स कारोबार के बुनियादी तथ्य। आपसे ये जानना चाहेंगे, आपने अभी बताया कि इसमें काफी तरह के डेंजर्स भी जुड़े हुए हैं प्राइस फ्लक्चुएशंस को लेकर। सो क्या ये एक रेगुलेटेड ट्रेड है? क्या इसे हम जब डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं हम सीधे किसी से खरीदते हैं या एक्सचेंज के थ्रू खरीदते हैं? देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि इट्स हाईली रेगुलेटेड और रूल्स जैसे आप नॉर्मल स्टॉक में डिलीवरीज खरीदना, मार्जिन मनी किस प्लेटफॉर्म से खरीदते हैं, वहां पे भी कंप्लीट रूल्स है। और जिस वजह से जब 2000 में जब सरकार ने ईयर 2000 में जब शुरू किए थे तो वी हैड अ वेरी मैच्योर्ड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज उस बाय दैट टाइम। तो इसमें जो लोग एंट्री कर रहे हैं, मेरा उनके लिए राय ये होगा, एडवाइस ये रहेगा कि आपका जो सबसे कमजोर खरीद जब आप मार्केट में निवेश कर रहे हो इस तरह की स्थिति में, वो होगा आपका निजी सूचना। वो आपका सबसे कमजोर खरीद रहेगा। ये मत सोचिए कि भाई प्लेटफॉर्म में कुछ कमजोरी है या इंफॉर्मेशन में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। रेगुलेशंस आर एडिक्वेट, प्रोटेक्शन सर सबसे बढ़िया, लेकिन सूचना आपका सबसे कमजोर कड़ी इस ट्रेड में है। और इस कमजोर कड़ी का अच्छे करने के लिए आपको बहुत जरूरी है जिस मार्केट में भी या जिस कमोडिटी में भी आप एंटर करने का कोशिश कर रहे हैं उसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी लीजिए। ये नहीं कि अनियन का प्राइसेस फ्लक्चुएशन हो रहा है देख के आप जाके अनियंस का फॉरवर्ड ट्रेडिंग कर रहे हैं जाके, ऐसा बिल्कुल ना करिए। बिकॉज प्रोडक्शन के साथ, ओवरऑल अवेलेबिलिटी के साथ, और जैसे मैंने कहा पल्सेस, वंस अगेन एज एन एग्जांपल, इट्स अ वेरी हाईली इंपोर्ट डिपेंडेंट प्रोडक्ट, राइट? तो वो सारी चीजें लिंक्ड होते हैं। अब जैसे पल्सेस हम सबको पता है साउथ ईस्ट एशियन नेशन से हम इंपोर्ट करते हैं, मलेशिया से, वियतनाम से, इंडोनेशिया से, बहुत हाई लेवल ऑफ पल्सेस। तो ये ग्लोबली भी एक निर्भर करता है। शुगर, अब शुगर जैसे एक ऐसे प्रोडक्ट है जिसमें प्रोडक्शन जितना बढ़ता रहता है कीमत उतना घटता रहता है क्योंकि मार्केट में इतना ओवर सप्लाई हो जाता है। लेकिन शुगर का साइकिल बहुत वेल डिफाइंड होता है। ग्लोबली इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर, राइट, आफ्टर ब्राजील। और ब्राजील में हर तीसरी साल शुगर का मैसिव प्रोडक्शन फॉल आता है वेदर फ्लक्चुएशन की वजह से। तो वो जो कौन सी तीसरा साल है वो आपको प्रोडक्ट के बारे में जब तक जानकारी ना हो, सिर्फ डोमेस्टिक प्राइस ऑफ शुगर का आप ट्रैक करेंगे आपको बड़ी मुश्किल हो जाएगा। तो बहुत कॉम्प्लेक्स कमोडिटीज है ये। और शुगर एक ऐसा प्राइस चीजें है जो हम सबको पता है गवर्नमेंट द्वारा नियंत्रित होता है इसका प्राइस, लेकिन साथ में इतना फाइन बैलेंस होता है जहां पे रातों रात 2 महीने 3 महीने के अंदर ग्लोबली प्राइसेस क्रैश करता है। अगर कहीं ना कहीं पता चले ग्लोबल मार्केट्स को भाई इंडिया का शुगर प्रोडक्शन इस साल एक्सेस होने वाला है। हालांकि पिछले 3-4 साल से इंडिया का शुगर प्रोडक्शन ऑलमोस्ट मोर और लेस ज्यादा है, या 1 से 2 मिलियन टन ज्यादा होता है प्रोडक्शन, बट इंटरनेशनली इस तरह का प्राइस सेंसिटिव। तो फॉलिंग मार्केट में भी अगर आप उसको पहले से प्रेडिक्ट कर लें तो आप प्रॉफिट बना सकते हैं। क्योंकि डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग का, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, कि एक ऐसा ट्रेडिंग है जहां पे आप गिरने से भी आप कमा सकते हैं और उछाल होने से भी कमा सकते हैं, अनलाइक स्टॉक मार्केट जहां पे सिर्फ आप जब उछाल होता है तभी आप कमा सकते हैं। तो मेन जो 2 डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स है, फ्यूचर्स और ऑप्शंस, उनमें क्या मेजर डिफरेंस है? देखिए, फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग जिसको हम कहते हैं, FNO ट्रेडिंग जिसको हम कहते हैं, उसमें खास करके जैसे कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन के बारे में हमको बताई दिए, जहां पे कॉल ऑप्शन में इट गिव्स यू द राइट टू बाय बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय, और पुट ऑप्शन में इट गिव्स यू अ राइट टू सेल बट नॉट एन ऑब्लिगेशन टू सेल। लेकिन तो आपका लॉस लिमिटेड होगा, जो कि शुरू में पैसा मैक्सिमम लॉस वही होगा। लेकिन अगर कॉल ऑप्शन में अगर जो सेलर है वो, अगर बायर जो है, अगर वो अपना राइट एक्सरसाइज करता है खरीदने के लिए, तो पुट ऑप्शन में उनको माल बेचना ही पड़ेगा। ये विदेशी बाजारों में होता है, देसी बाजारों में हम लोग का थोड़ा अलग से रूल्स होता है। तो आज जब सिंस हम लोग एकदम बेसिक्स डिस्कस कर रहे हैं, हमारा श्रोताओं के लिए ओवरऑल फोकस करते हैं डेरिवेटिव ट्रेडिंग के ऊपर, उतना डिटेल्स में ना जाके वो धीरे धीरे हमारा आने वाला प्रोग्राम में जब मैच्योर्ड हो जाएंगे एज ट्रेडर डेरिवेटिव्स में, वहां पे कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन का क्या डिफरेंस है, विदेशी बाजारों में क्या डिफरेंस है और हमारा घरेलू बाजारों में क्या डिफरेंस है, वो हम समझाएंगे अच्छे से। और साथ में फ्यूचर्स ट्रेडिंग इज अ रिफाइंड फॉर्म ऑफ फॉरवर्ड ट्रेडिंग, जहां पे आपको जो फॉरवर्ड ट्रेडिंग में जैसे डिलीवरी ना हो तो क्या संस्था हो सकता है, उस तरह की चीजों से आप प्रोटेक्ट होते हो, और साथ में आप एक अलग से कम्युनिशन पे करते हो फ्यूचर्स ट्रेडिंग में, जिसका द्वारा आप अपना प्रोटेक्टेड रहते हो।
So, in the beginning, you mentioned about somebody who has a marriage in the house, Yeah. let's say 3 months later, and wants to ensure the price of gold at 30,000 or 32,000. Similarly, somebody listening to this discussion now has the idea कि April में तो है तुअर दाल 200 रुपए जाता है, तो I want to ensure it at 100 rupees today, and he therefore wants to get into this trade of probably 25 kgs of gold or probably 25 kgs of tuar dal. Can he do that? And if so, how can he do that? See, first of all, he has to have just like a Demat account, he has to have a membership in the commodities account. So a Demat already existent Demat Exactly. account is not enough. No, You you need have to have a... You have to obviously Okay. because your Demat account enables you to just trade in your stocks. NSE and BSE. So बट you're saying- लेट्स स्टॉक्स में भी डेरिवेटिव्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। मेजर डेरिवेटिव्स तो स्टॉक बिल्कुल मार्केट होता में है, ही बट होते हैं। इनका स्पेसिफिक जी, सवाल जी। कमोडिटी लेके था, तो इसलिए मैं कमोडिटी एक्सचेंज में एक डीमैट अकाउंट करने के बाद सवाल यहाँ पे जिक्र किया। बेशक, लेकिन जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में आप करेंसी भी, अब जैसा अगर आपको लगता है कि भाई जिस तरह का कोरोना वायरस फैल रहा है और ग्लोबली एक क्रैश, ग्लोबल इकोनॉमी का क्रैश होने का संभावना और भी ज्यादा सामने है, तो ऐसा स्थिति में 3 इंडस्ट्रीज जो सबसे ज्यादा इफेक्ट होंगे वो है एविएशन इंडस्ट्री, टूरिज्म तो होंगे और साथ में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, बिकॉज ऑलमोस्ट 90% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन कहीं ना कहीं चाइना में है, कोई ना कोई ग्लोबली बेस्ड कंपनियों का। तो ऐसा स्थिति में अगर आपको लगता है कि भाई क्रॉस करेंसी में खास करके डॉलर वीक हो सकता है भविष्य में, अगर क्रैश कर जाएंगे तो रियल में अलग से नरमी आ सकता है, बिकॉज ऑयल प्राइसेस का डिमांड नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में आप बेशक एंटर कर सकते हैं करेंसी में। सिमिलरली क्रूड ऑयल, जैसे आपने कहा, क्रूड ऑयल पूरा साल भर सॉफ्ट होने का बात है, और अगर ग्लोबली 1 सेकेंड स्लो डाउन आएंगे तो क्रूड ऑयल का डिमांड और सॉफ्ट हो जाएगा, तो वहां पे आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते हैं जहां पे आप क्रूड ऑयल बेचिए आप एक पर्टिकुलर कीमत में, तो उसमें भी आप एंटर कर सकते हैं। तो ये निर्भर करता है आपका रुचि किस कमोडिटी में है, लेकिन बार बार श्रोताओं को मैं ये कहूंगा कि इस तरह का जो ट्रेडिंग है काफी मेच्योर ट्रेडिंग है। इसमें आपका एक तो हेजिंग ऑफ रिस्क होता है जो अच्छी बात है, उसमें अगर आपका रुचि है ठीक है, लेकिन लोग ये भी सोचते हैं कि भाई कम पैसा लगा के ज्यादा मुनाफा, अब जैसे आम तौर से लोग बोलते हैं कि भाई कम पैसा लगा के ज्यादा मुनाफा स्टॉक मार्केट में करना इसमें टिकट साइज, जैसे मैं स्टॉक मार्केट में तो 5,000, 2,000, 10,000 लेके भी, देखिए फ्यूचर ट्रेडिंग में टिकट साइज थोड़ा ज्यादा होता है, बिकॉज आपको कितना होता है लगभग? डिपेंडिंग करता है, अगर 1 करोड़ का दाव लगा रहा है उसको 10% तो 10 लाख रुपए उसको तुरंत चाहिए, okay. एंड दैट्स द राइट रिटर्न ऑफ मनी आप कर रहे हैं। अगर आपको उस रेट में ना हो तो 10 लाख का पूरा खत्म हो गया, तो आपको शेयर्स भी लॉट्स में खरीदने पड़ते हैं, ये ऑन पेपर, ऐसा नहीं का फिजिकली डिलीवरी ले रहे शेयर्स का, जी। तो ये खासियत है। जैसे मैंने शुरुआत में जो हम 10 लाख का जो एग्जाम्पल समझाए थे, जहाँ पे हम बोले थे कि भाई आपका जो कमीशन आप जमा कर रहे हैं वो मनी, इसके अलावा लॉस या प्रॉफिट वो आपके पास वापस आएंगे। तो आप ये एक्सचेंज से डायरेक्टली खरीद सकते हैं या आपको कोई बायर ढूंढना होगा? एक्सचेंज में जैसे सेलर ढूंढना होगा। अगर हम जैसे स्टॉक मार्केट में बाइंग सेलिंग करते हैं, हम सोचते फॉर एग्जांपल कोई फिलहाल कोई बैंक का शेयर हमारे पास है 200, हम क्या करते हैं उसको एक्सचेंज में जाकर डालते हैं, राइट, हम खरीदना चाहते हैं, तो रात इमीडिएटली कोई ना कोई बेचने वाला या खरीदने वाला होता है दूसरी तरफ। तो कमोडिटीज एक्सचेंज मार्केट में भी ऐसे ही होता है, आपको अलग से जाकर ढूंढने का जरूरत नहीं है, आपको उनके पास सेलर्स बायर सारे मौजूद होता है, क्या रेट्स में मौजूद होता है, आप अपना रेट लिख दीजिए, इमीडिएटली उस रेट में जो खरीदना चाहता है, बेचना चाहता है, डील करना चाहता है, उनका भी रेट ऑटोमेटिक आ जाता है, एंड दैट्स व्हाट एक्सचेंजेस आर फॉर, और वो उसके लिए कमीशन लेता है। और रेट होता है और एक टाइम पीरियड भी इंपॉर्टेंट होता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर डूइंग, किस तरह का कमोडिटीज किस तरह का पीरियड में आप एंटर कर रहे हो। जैसे आप देखें, एक तो मार्क टू मार्केट होता है जो एवरीडे क्लोज होता है, और एक 30 जो फॉरवर्ड ट्रेडिंग होता है, 30 डेज 60 डेज का पीरियड होता है, अवधि होता है, जो एक पर्टिकुलर डे में जाके खत्म होता है। And you mentioned FNO are the most common instruments. There's also forwards and swaps that is available. Yeah. How are they briefly, if you can just See, futures are example of forwards to a great extent, and swaps are happening when two persons are agreeing to a particular price band, and based on that they do their trading in terms of it's once again an advanced platform of how overall derivative trading should be done. तो आपने बताया कि बहुत ही एक एडवांस्ड फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट है, मैच्योर फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट है, उस पे आपने जो ये प्रकाश डाला, इसके कई तथ्य के बारे में हमें बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। Once again, the topic for tomorrow's show is where to invest to save tax. Thank you, Jayanto. Thank you, Sonu. And that's a wrap on this edition of Money Matters. Namaskar. Thank you.